কাজের অংশ লাগে না जोनटा আমরা সবলে বেশি এক্সপার্ট আছে जोनटा আমরা বেশি এক্সপার্ট আছি যেটা আমরা ঘরে বাইরে কাজটা করতে পারি এটা আমাদের ওইটাই মানে ক্ষতি করে দেওয়া আছে মানে আমাদের ক্ষতি উদারে नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। अभी आपने कुछ झलकी देखी किस तरह महिला मजदूर लगातार नारेबाजी कर रही हैं डोलू चाय बागान की ज़मीन के अधिग्रहण के विरोध में, और ये एक नियम बन गया है रोज़ाना काम से लौटते हुए ऐसे नारे लगाना। दूसरी ओर असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले डोलू चाय बागान के मजदूरों ने सरकार की ओर से घोषित 1 लाख रुपए के मुआवजे को लेने से इनकार कर दिया है। सिलचर में आयोजित एक बैठक में फैसला किया गया कि जब तक जन सुनवाई के दौरान पारित लिखित प्रस्तावों को लागू नहीं किया जाता तब तक मजदूर 1 लाख रुपए का मुआवजा नहीं लेंगे। उन्होंने अपनी तमाम मांगें ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को भी भेजी है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। चलिए पहले आपको दिखाता हूँ वो वीडियो कि किस तरह महिला मजदूर रोजाना काम से लौटते हुए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ, एयरपोर्ट परियोजना के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। इसके साथ ही दिखाऊंगा दूसरे चाय बागानों के मजदूर भी अब डोलू मजदूरों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं, उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा दिखाऊंगा उस बैठक की बात, वो बैठक जिसमें सरकार की ओर से घोषित मुआवजे को तब तक नहीं लेने का फैसला किया गया जब तक जन सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। जन सुनवाई में लिखित जो प्रस्ताव पारित हुआ था उनको लागू नहीं किया जाता। पहले वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। কাজের অংশ লাগে না जोनटा আমরা সবলে বেশি এক্সপার্ট আছে जोनटा
ওরা বেশি এক্সপার্ট আছি, যেটা আমরা ঘরে বাইরে কাজটা করতে পারি। ওইটাকেই মানে ক্ষতি করে দেওয়া হচ্ছে, মানে আমাদের ক্ষতি। তো ওই 5টা শর্তগুলো এখনো কেউ কেউ জানেন না, আমরা লিখিতভাবে যেটা দিয়েছি যে 5টা শর্তগুলো হচ্ছে। একটা শর্ত, যেমন আপনারা সবাই ছিলেন, আমি বললাম যে গাছগুলা উঠাবে ওই গাছগুলা কোথায় লাগাবে, যদি লাগাবার জায়গা আছে বলে এয়ারপোর্ট বানা, তো নিশ্চয়ই লাগাবার জায়গা অতটা নাই যে, যার কারণে ওরা বলপূর্বক করলো। তো আমরা এখনো বলবো যে আমাদের 30-35 লক্ষ চারা গাছ আগে লাগাই দেওয়া হোক না, এয়ারপোর্ট একদিকে বেনা, আমাদেরটাও লাগা। আর আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলছি, কেউ প্রশ্ন করলে যে নাই না, এটা বলার সঙ্গে যুক্তিযুক্ত কথা বলতে লাগে। তো এই যুক্তির বিষয়গুলো ওইটাই লাগে যে আমরা তো বলেওছিলাম যে এয়ারপোর্টটা মানছি আমরা, উন্নয়ন লাগে, আমার নাই অন্যর হতে পারে, কিন্তু আমার ক্ষতি করছিস, আমার ক্ষতিপূরণটা তো দিতে লাগবে না। তো 35 লক্ষ চারা গাছ লাগাবার জায়গা যদি আছে লাগাই দেখা, না খেয়ে বলে করেই তো লাগানির কাজটা বন্ধ আছে। আর আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করে বলছি, ক্যাজুয়াল মর্দনাগুলাকে কাজে বার করার লাগে আপনারা পারমেন্টগুলো একটু জোর করো। আর ওই 1 লাখ টাকার বিষয় যেটা হচ্ছে ওইটা আরেকবার বলে দিচ্ছি, এয়ারপোর্ট হইলেও ওইটা পাবে আপনারা, আর না হইলেও পাবে। মানুষ ভুল বুঝাচ্ছে যে আমরা মিছিল করলে বলে ওটাও কাটাই যাবে। ক্যাবিনেট মিটিংয়ের একটা নিয়ম আছে, মানে ছোট মন্ত্রী নিয়ে যে নিজের সার্কেলের মন্ত্রী লাগে, মন্ত্রীর নিজের এলাকার মিটিংয়ের ফলাফলটা ওইটাই লাগে যে মানে যেটা ও একবার করে দিয়েছে যে ওটা ও জিতলো করবে, ভালো করবে। বিজেপি সরকার প্রথম যে অটল বিহারী বাজপেয়ী ঘোষণা করেছিল মহাসড়ক হবে, অটল বিহারী বাজপেয়ী গিরার পরে তো আবার কংগ্রেস হইল না, মহাসড়ক হইলই। তো মানে ক্যাবিনেটের ওইটা নিয়মেই লাগে, আমরা এয়ারপোর্টকে সাপোর্ট করলো আর না করলো ওই প্রাপ্য টাকাটা আমরা পাবোই। ওটা ক্যাবিনেটের 1 লাখ টাকা যাদের লাগে ঘোষণা হয়েছে যে ওটা পাবোই। তবে ওটাকে লোক দেখানোর লাগে যদি ওরা এখনই দিতে খুঁজে, ওই এখন না নিয়ে করে আমাদের প্রস্তাবগুলা যে 5টা শর্তগুলা আর একটা দাবিগুলা সব সময় তুলে ধরবো আমরা, ওইটা আমাদেরকে করে দে, তারপরে আমরা নিব। কিন্তু ওটার উত্তর যদি নাইকে ওর 1 লাখ টাকা ঘুরাই নিয়ে যে আমাদের দরকার নাই। আর আপনারা কাজে একটু জলদি আসবেন, কাজের টাইমটা অ্যাকুরেট করে ধরবার চেষ্টা করো, তবে তো মিটিংয়ের ফলাফলটা বাইরাবে। আপনারা এতদিন রাস্তায় বেড়ায় করে আন্দোলন করছে বলে করে 1263 পরিবারকে আজকে 1 লাখ টাকা করে দিতে বাউন্ড হয়েছে, ওইটা তো আপনারা প্রতিবাদ করলেও মানুষ পাবে না, না করলেও পাবে। যখন আমরা করতেই লাগছে যদি কি হয় মানুষের কি কাম কাজ হ্যাঁ টাইম আছে, টাইম আছে। কোনো ভালো যদি হবারই আছে, আমাদের যদি আরো কেউ শিক্ষিত থাকতে পারে, আমি বাগানের মানুষকে খারাপ করছি না, ভালো মানুষ আছে, ভালো মানুষ আছে বলে তো সরকার করতে আছে। এই দিকেরটা নিস, এদিকেরটা পুরো হয়ে গেছে, খালি এই দিকেরটা। ওই সময়ে সমর্থন করব যে জনশুনানির যেটা লিখিত বিষয়গুলো দিয়েছি, আগে ওটা বুঝায় যে ওটা করে দেখা, তারপরে লিখব আর আমরা এয়ারপোর্টকে সমর্থন করবো। আমরা যেটা বলেছি ওটাই যদি ওরা বলতে চাইছেন যে আমরা উস্কাচ্ছি আপনাদেরকে, তো আপনারা কি ভাবছেন, মানে আপনাদেরকে উস্কানি হচ্ছে? আমি তো এখনো বলছি যে এখনো মানে চপলের নম্বর বেজান আছে আপনাদের, মানে কারো পাওয়ার 5 নম্বর আছে, 6, 7 আছে। উস্কানির যদি একটাও হিংস যদি কারো মনে যাচ্ছে, ও এই নাচমান্ডবে মানে চপল দিয়ে মারে করে আমাদেরকে বিয়ে করতে পারবে। আমাদের আশা করে 2-একটা কথা বলার যুক্তিটা হচ্ছে যে আপনারা একজুট হয়েছেন, আপনাদের সঙ্গেই আমিও আছি, ওই কথা বলছি। তো এখন আপনারা প্রত্যেকজন পারবেন
वीडियो कर ধ্বংস করে ডলুতে এয়ারপোর্ট তৈরি মানছিনা মানব না জোর से बोलो ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ এই শ্রমিক একতা জিন্দাবাদ এই শ্রমিক একতা জিন্দাবাদ দুনিয়ার মজদুর দুনিয়ার মজদুর দুনিয়ার মজদুর মুখ খুলো ইনকলাব জিন্দাবাদ শরম লাগে নাকি ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব आपने देखा वीडियो। अब आपको बता दूं कि डोलू के आंदोलन की आग अब बराक घाटी से पार कर ब्रह्मपुत्र घाटी तक पहुंचने लगी है और AITUC, AICCTU, AMSU, AIKSR, AIUTUC इन तमाम संगठनों ने मिलकर अब इस मामले को राजधानी तक ले जाने का फैसला किया है। इसके तहत 7 जून को दोपहर बाद 3 बजे गुवाहाटी प्रेस क्लब में एक नागरिक सभा का आयोजन किया गया है। उसमें यह तमाम लोग अपनी बातें खुलकर रखेंगे। अब आपको बताता हूँ बैठक जो हुई थी मजदूरों की असम मजदूरी श्रमिक यूनियन की, उसमें तमाम पहलुओं पर आलोचना हुई। सरकार ने जो मुआवजा घोषित किया 1-1 लाख रुपए का, इसके अलावा बागान प्रबंधन को जो मुआवजे के तौर पर रकम मिली है उसमें से 10% मजदूरों में बांटने की जो बात कही गई है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और कुंजलता घटवार इसमें सभा नेतृत्व एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में फैसला किया गया कि 2328 मजदूरों के हस्ताक्षर से जो जन सुनवाई के दौरान लिखित प्रस्ताव दिया गया था उसे लागू करने से पहले कोई भी मजदूर सरकार की ओर से घोषित 1 लाख रुपए की रकम स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा और कमेटी ने फैसला किया है कि यूनियन की बागान समिति अपनी अलग जन सुनवाई का आयोजन करेगी और ये तमाम फैसले एक ईमेल के जरिए ज्ञापन के तौर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को भेज दिया गया है। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने कहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 9A और 9B की धारा के प्रति मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि इन धाराओं के तहत अगर किसी उद्योग के लिए जमीन का अधिग्रहण या जमीन के स्वरूप में बदलाव करना है तो इसका क्या प्रतिकूल असर मजदूरों और कर्मचारियों पर पड़ेगा, इसे तमाम शर्तों के ऊपर एक नोटिस जारी करनी पड़ती है सारा खुलासा करते हुए और 9A धारा के उसके बाद गजट नोटिफिकेशन भी करना पड़ता है। 9A धारा मालिक बाध्य है इसके तहत तमाम जानकारियां देने के लिए और 9B धारा में सरकार को मजदूरों और कर्मचारियों के हित में गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। लेकिन डोलू चाय बागान की 2500 बीघे में लगे लाखों पौधों को उजाड़ने से पहले न तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कोई न तो पब्लिक डोमेन में है यानी न तो सार्वजनिक है न ही ऑफिशियल साइट पर है। ज्ञापन में कहा गया है कि जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए पहले नोटिस, उसके बाद फाइनल नोटिस और बाद में अवार्ड नोटिस दिया जाता है जिसमें विस्तार से जिक्र होता है कि किसको कितना मुआवजा मिलेगा, किस मद में कितना पैसा दिया जाएगा। लेकिन
जिला उपायुक्त के दफ्तर में ऐसी नोटिस का कोई उल्लेख नहीं है, इसकी कोई कॉपी नहीं है। इसलिए असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत एक याचिका दायर की है और ऐसी प्रक्रिया के बिना कैसे आखिर पेड़ उजाड़ दिए गए लाखों, यह बहुत हैरत की बात है, ऐसा ज्ञापन में कहा गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि दो बार जन सुनवाई हुई, उसमें 2328 मजदूरों ने हस्ताक्षर समेत एक लिखित प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन प्रस्तावों को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ऐसा कोई समझौते में जिक्र भी नहीं है कि 2500 बीघे जहां पौधे लगे थे उस जमीन के बदले कैसे मालिक अस्थाई और अस्थाई मजदूरों को काम देंगे, बागान प्रबंधन कैसे काम देगा, इसकी कोई रूपरेखा नहीं तय की गई है। और जहां पौधे उजाड़ दिए गए हैं वहां काम करने वाले अस्थाई मजदूरों को बागान प्रबंधन ने अब तक कोई काम नहीं दिया है। इसके अलावा ज्ञापन में विभिन्न समस्याओं का जिक्र किया गया है और उसमें उम्मीद जताई गई है, असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने उम्मीद जताई है कि ये दोनों महत्वपूर्ण जो मांगे हैं उनको वरीयता देते हुए, प्राथमिकता देते हुए सरकार अपनी सदिच्छा का सबूत देगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजदूर बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। और इन तमाम चीज़ों की जानकारी असम मजदूरी श्रमिक यूनियन की ओर से मृणाल कांति सोम ने एक प्रेस बयान जारी कर दी है। उन्होंने ज्ञापन की कॉपी भी मीडिया को दी है। तो दोनों चीज़ें चल रही है। अब ये आंदोलन बराक घाटी से ब्रह्मपुत्र घाटी तक पहुंच रहा है। दूसरी ओर डोलू के समर्थन में दूसरे चाय बागानों के मजदूर भी खड़े हो रहे हैं। डोलू की महिला मजदूर भी इस आंदोलन में आगे हैं। फिर कोई अपडेट होता है तो मैं नियमित रूप से बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन दबाना भी मत भूलें।